So I'm going to use both the languages on a mixed basis, Hindi and English, so that everybody get involved in the overall discussion. So friends, when I say this way forward welcome 2021, तो बहुत सारी बातें हम लोग के जहन में तुरंत से इमर्ज होने लगती है. And let me share the screen to start the whole discussion. First of all, let me clarify, this session is an interactive. Obviously, I will give you a lot of time to talk, ask questions and other things. But मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये एक डिस्कशन फोरम है, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है, एक डिस्कशन फोरम है, सो दैट ऑल द कम्युनिटी मेंबर, हम सब भाई लोग एक जगह मिलके कुछ तय कर पाएं और सही चीजों को अवलोकन कर पाएं. एंड दैट्स द वे फिंसिस एकेडमी हैज बीन डूइंग देयर जॉब इन पास्ट. We always try to help you and try to give you a right path. Not necessarily जो मैं बोलूं वही फॉलो कर लोगे आप. Obviously you will get to understand few things जो आपको कल को हेल्प कर सकता है अपने डिसीजन लेने में. जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने कमेंट्स यहाँ पे बंद कर देता हूँ. Just a second, do not disturb. It's 7. Let me put it 7 p.m. to 11:30 a.m. Good. So, दोस्तों, let me talk about these things straight away. This session is for MFDs, mutual fund distributors, and हम सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी बहुत सारी बातों को कभी कभी साथ मिलके डिस्कस करते हैं, तो वी गेट टू अ नाइस पॉइंट. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. And Finsis Academy, I am Abhinesh Kumar. I am founder and director for this academy, and we keep delivering the right thing, the right comments, the right discussion for you. And today, let's first understand the future landscape for financial industry. Of course, हम सब अपने अपने एरिया में पंडित हैं, expert हैं. I respect you all in terms of your knowledge, your experience. So there is no debate about it. But still, when I am speaker this side, so I am sharing my thoughts. Maybe we can later talk and debate on these points at the end. So ज़रूरी नहीं है, जैसा मैं पहले भी कह रहा हूँ, कि सब कुछ आपको मान लेना है. बट चर्चा अभी फिलहाल मेरी तरफ से ही वन साइडेड हो रही है. लास्ट में हम इसे इंटरैक्टिव बनाएंगे. सो दोस्तों, फ्यूचर लैंडस्केप फॉर फाइनेंशियल इंडस्ट्री एक छोटा सा बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग कोई इसका चार्ज नहीं लेते. ये इंटरैक्टिव सेशन है. हम लोग जो भी सुनने जा रहे हैं पॉजिटिव अप्रोच से सुनने जा रहे हैं, बिकॉज हम सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है. वी ऑल हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू ग्रो आवर बिजनेस एक्सपेंशन. So that's the positivity through which everybody has joined. I hope you will like it and understand the overall landscape of discussion. So this 2020, everybody knows it's not the simple one. There were many things. It was almost a roller coaster ride. Of course, COVID played a very important role. Then SEBI regulations. It was a completely 2-3 months of brainstorming months after this regulation. जैसे ही सेबी ने ये रिलीज किया, पूरे एमएफडी को बहुत ज्यादा बदलना पड़ा. यहाँ मुझे बहुत दुख भी लगा था, बिकॉज व्हाट वाज डन इज कि दे snatched a tag of advisors. So they told us that you are no more advisors. So that initially was very hurting. बहुत बुरा लगा और काफी चेंजेस करने पड़े लोगों को. बट overall people took it very positively. Congratulations to all MFD, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने इतने कम समय में अपने पूरे नॉमिनिक्लेचर को चेंज किया. They accepted the regulation so positively that government even got shocked. कि how come this all 30-40,000 people corrected their overall nomenclature just in 3 months. So that was tremendous. But anyway, that was the issue. Third was MFI DDQ. As you know, MFI ड्यू डिलिजेंस क्वेश्चनर पहले वाले जो होते थे और जो फ्यूचर में आने वाले हैं, there is a major change in that. So
People are today fighting with this also. Those who have already crossed 100 crores or maybe earning commission of annually around more than 50 lakhs from a single AMC or 1 crore from overall AMC. Such are the people who are going to get this DDQ, new DDQ audits. So that is also going to be a good challenge. And it was all hectic year for people like this. The fourth one, the new competition, obviously RIA पहले सिर्फ RIA था, अब RIA multiple level में आ गया है, यानी all such corporate RIAs today are IA plus distribution. So we have got new people under distribution who were earlier only doing the RIA business. So these are the few things जो हम लोगों के लिए बहुत important change की तरह आया. So that was the hectic 2020. I hope everybody believes that. But how things took shape finally, 2021 में अंदर आने से पहले हम लोगों ने जो चीजें करी, नाउ वी आर इन दिसंबर. सो फर्स्ट थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, इज MFD इमर्ज्ड स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर. ये शायद ये फीलिंग सभी को हो रही होगी, सिर्फ मुझे नहीं, that all mutual fund distributors, despite all those hectic things, regulatory changes, we have come out very very well. People, I'm why I am so happy, because being in academy, when I personally started training people on the changes, the nomenclatures, how they should adapt it, I really never thought कि ये इतना easy हो जाएगा. But after all this, I found my distributor friends doing really well. The businesses has grown. Touchwood, stock market and equity market has supported us, and in a big way. Most importantly, mutual funds as a whole, as an industry, has proven to this world that this is the safest and जबरदस्त जगह है पैसा रखने का. So म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी ओवरऑल सैल्यूट करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल अप्स एंड डाउन्स बहुत लोगों के तो जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं या कहीं और ट्रेडिंग करते हैं, उन सब के तो पैसे बहुत गलत गलत समय खत्म हो गए. दे ऑल डिप्लीटेड देयर कैपिटल. बट अगर हमने किसी तरह लोगों को 3 4 6 महीने की पेशेंस दे दी थी पिछली बार, तो आफ्टर ऑल दीज कोविड क्राइसिस, funds have done really well across sector, across products. So that is a good news for all of us. We are happy, our customers are happy, their portfolios have somehow reached the level which was desired. Now, the second good thing which is taking us to 2021 is the MFD communication, the way we talk, the way we communicate to our customers, our audience. It's completely changed to digital. That is again a very very nice thing. So that is saving time and money. And even पहले की तरह जब हम कम्युनिकेशन पहुंचा ही नहीं पाते थे, there were times when one customer could hear from our side in 7 months, 1 year or so. अब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है. सो दैट इज समथिंग माय MFD फ्रेंड्स हैव अडॉप्टेड. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज पहले क्या होता था, कॉम्पिटिटर के मेल आते थे, बड़े बड़े बैंकों के मेल्स आते थे, उनके मैसेजेस आते थे, उनके एडवर्टीजमेंट्स होते थे, या फिर प्राइवेटली लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स का कम्युनिकेशन होता था. हमारे बेचारे एवरेज हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूटर्स छूट जाते थे. But this change, this upgrade of communication, people are now posting on social media in a very smart manner. Most of you have started blogs, as I have seen. You have started writing. आप लोगों ने अपने दिल की बात लिखनी शुरू कर दी. और ये ब्लॉग्स पहले लिखा जाता था, अब ब्लॉग्स को लोग प्रमोट करने लगे हैं. आई एम वेरी हैप्पी बाय दैट ऑल्सो. सो ऑल MFD community should be proud of themselves. There are more than 7,000 different blogs. Of course, ये blog आपके कस्टमर के अंदर ही रह जाता है. There is no grudges for that.
और अच्छी बात है, आपको नेशनल नहीं पहुंच पाते हो, लेकिन फिर भी हमारा ब्लॉग लिखना हमारे कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है। दे एटलीस्ट फील गुड दैट वी आर अवेक, जिंदा हैं हम, कुछ कर रहे हैं हम। सो ब्लॉग इज अ न्यू थिंग विच हैज बीन स्टार्टेड। वीडियो क्रिएशन तो मजेदार होने लगा है, बहुत अच्छा। और वीडियो के साथ वीडियो का प्रमोशन, there are a lot of companies, I must appreciate them. They are making good videos. I have seen my distributor friends promoting some nice videos on a cartoon based or a creature, or something. They are communicating to the outside world in a very intuitive and simple manner. So that is also helping us, and friends, that I am really proud of. सो वीडियो पे लोगों ने बहुत बहुत मजा लेना शुरू किया। ईमेलर्स, ऑफ कोर्स पहले तो लोग मेल चिम्प जानते नहीं थे, और मुझे लगता है कि हमारे फिंसिस के सारे यूजर्स का आज मेल चिम्प अकाउंट है। And we are managing lot of their accounts in terms of posting, creating their mails, the smart mailers. Even they are doing it on their own. So people are now equipped. So 2021 में जब मेरा ये पूरा फौज, ये मेरी पूरी टीम जा रही है अंदर, so I am really proud on myself, proud of my community, कि भाई साहब अब हम लोग ये सब चीज खुद करने लगे हैं। So that is something really great. WhatsApp marketing का तो पूछो ही नहीं. They have given a huge landscape to people. WhatsApp marketing में bulk marketing tool has helped them a lot. People have started using effectively, not as a just एक हम बेवजह ही मार्केट नहीं कर रहे उसको, हम उसको बहुत बैलेंस्ड वे में, मेरी कम्युनिटी, मेरे दोस्त उसको यूज कर रहे हैं। सो उसके लिए भी मुझे बहुत बहुत गर्व है। आई एम वेरी हैप्पी। आप रेगुलर कर रहे हो तो दैट इज गुड। वेबिनार लाइक आई एम डूइंग विथ यू इज अ ट्रेनिंग वेबिनार। सिमिलरली मेरे बहुत सारे एमएफडी वाइज ने अपने अपने लोकल लेवल पे हर मंथ में एक बार, एटलीस्ट मंथ में एक बार वेबिनार शुरू किया है। सो अगेन दैट नंबर इज ह्यूज। पीपल आर डूइंग, एज फार एज आई नो, देयर आर अराउंड 200 to 300 वेबिनार्स जो मुझे इनवाइट आता है, मुझे पता चलता है कि मेरे एमएफडी दोस्त कर रहे हैं। So people are doing, and as you know, Finsis Academy has helped lot many MFDs. जिन MFDs को अपना वेबिनार कंडक्ट करना है, या they want to do a webinar but they are unable to promote it, invite customers, they don't know how to open up, how to start the session, so they are taking our help also. We are doing that help. So webinar is something which Finsis Academy has supported you all always, and we are open for all the support you need for this. टेलीकम्युनिकेशन, अभी तक लगता था कि सब लोग फोन में ऐसे ही बात करते हैं, बट मैंने आईवीआर, जो आईवीआर का प्रमोशन देखा है, इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्डेड सिस्टम, इसमें इतना बढ़िया लोगों ने यूज करना शुरू किया है। देयर आर गुड कंपनीज व्हिच केम आउट विद आईवीआर। सो टुडे पीपल आर नाउ दे हैव फोन नंबर्स व्हिच सेज हेलो, वेलकम, दे रिकॉर्ड ऑल द लाइंस। सो दीज थिंग्स आर द इम्प्रूवमेंट। बॉट्स का भी इस्तेमाल करते मैंने लोगों को देखा है, ऑल्दो लेस, बट देयर आर पीपल हु आर यूजिंग बॉट्स आल्सो। So bots we will talk about later during our next training session and all, because we are also coming out with a WhatsApp bot. हमारी Finsis Academy इस पे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रही है, which will be WhatsApp based transaction system. So that is our new launch in 2021. So you should wait to see that. Okay. Now, then it's MFD मार्केटिंग एक्टिविटी। इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं और इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग भी बहुत सारे लोगों ने पैसे डाले। देयर आर पीपल आई नो हु पुट मनी इन SEO so that their website should be searched well, to be found during the search. Although I never promote it, I never believe that SEO is going to help on a lower scale. Yes, I believe that SEO will help, but then you have to pour in all your efforts and money to that. So मैंने हमेशा अपने MFD दोस्तों को कहा, मार्केटिंग करते समय SEO का इस्तेमाल कर लो तभी जब तुम्हारे पास टीम हो। If you don't have a team to manage the inquiries,
पता लगा 15-16 आपको रिस्पॉन्स आ गए इन अ डे एंड यू आर नॉट एबल टू अटेंड देम, तो ये सब मार्केटिंग एसईओ फेल हो जाती है. सो पीपल कैन नॉट ओनली शुड नॉट ओनली सर्च यू, दे शुड बी एबल टू टॉक टू यू और देयर शुड बी सम एक्शन. सो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में पैसा तभी लगाइए, ये हमने हमेशा अपनी ट्रेनिंग में लोगों को बताया, तभी लगाइए जब आपके पास प्रॉपर सीटीए हो. व्हाट इज सीटीए? क्लिक टू एक्शन बटन. सो दैट दिस सीटीए शुड एक्चुअली आपके पास सीधा सीधी डायरेक्टली कस्टमर को एंड तक पहुंचा दे, विच मे बी द ट्रांजेक्शन एंड और मे बी द व्हाट यू कॉल लीड एंड. सो मे बी वो ट्रांजेक्ट करे या लीड छोड़ के जाए, तभी आप उस पर वर्क कर पाओगे. सो दैट सीटीए हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन पीपल यूजिंग दिस. स्ट्रैटेजिक प्रमोशन भी कुछ लोगों ने किया, बट अगेन एज आई सेड, मैं इस पूरे सेक्शन से कन्विंस नहीं हूँ, बट मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ. बट अपने दोस्तों को मैं ये कहता हूँ कि यू कैन सेव मनी हेयर, डोंट पुट मनी हेयर until unless, as I again repeating, until unless you have a good team to handle it. सो अगर आपने जैसे पाइप खोल दिया और बहुत सारा पानी उससे आने लगा, लेकिन आपके पास बाल्टी नहीं है या चीजें नहीं है उस पानी को समाने के लिए, उसको यूज करने के लिए, तो सारा पानी वेस्ट हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन यू डू लॉट ऑफ marketing activities in digital format, you should be able to utilize it through CTA, the click to action button. That should be very nicely diverted to a place. Now, fourth one is the taxation matter. Taxation matter पे बहुत hot रहेगा 2021. मुझे लगता है कि taxation matter के लिए finally एक बड़ा landscape बनाने वाला है, और हर distributor को, every distributor would require themselves to upgrade themselves in a taxation matter, and that we will talk later why it is very important. Mainstream business, mainstream business. इंश्योरेंस मैटर्स ऑल्सो बिकेम अ मेन स्ट्रीम बिजनेस. सो ये दो चीज तो बहुत बड़ी ऐड हुई है इस पूरे कोविड के बाद. और जब 2021 में हम एंटर कर रहे हैं दोस्तों, सो आई एम अगेन शोइंग यू दिस एज अ क्लीन स्लेट दैट यस वी आर हियर, दीज आर द थिंग्स यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट. और आप इसमें से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, प्लीज चेक. सो यू मस्ट चेक whether you are missing on any of these. But if you are, then learn about it, adopt it in your day to day business, and this is going to be the key, the communication. अगर हमने सही कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अपनाई और डिजिटली उसको अच्छे से यूज कर लिया, तो ये सारे फॉर्मेट आपको इजीली विनिंग स्टेज पे ले जा सकते हैं. Anyway, so what took the backseat? So before I come to the basic presentation and the session, I must would like to talk कि क्या चीजें नहीं चली. उस पे हंसने के लिए नहीं, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए. तो सबसे पहली चीज जो नहीं चली, रिसर्च टूल्स जो पेड वर्जन थे वो नहीं चले. दैट वाज अ फ्लॉप. व्हाई आई से इट्स अ फ्लॉप? बिकॉज उन्होंने जो जो प्रॉमिसिंग फीचर्स हैं उसको यूज करना एक एमएफडी के लिए भी चैलेंज था. प्लस हम सबको रोक दिया गया बाय रेगुलेशन. वी कैन नॉट सेल आवर रिसर्च. सो इफ यू कैन नॉट सेल योर रिसर्च, why will you buy those research? सो रिसर्च का बहुत सारा ट्रेनिंग हमने किया हमारे सेशंस में, और लोगों को बताया कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रिसर्च की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. आवर फंड सिलेक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बीटा, शार्प एंड अदर थिंग. There are people who may debate with me, but I guarantee and can debate with anyone that I can sell a mutual fund without buying any specific research tool. There are free research tools available. There are free like value research, money control, other things. अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत आसानी से हम अपने कस्टमर्स को उनको सही प्रोडक्ट दे सकते हैं. So if research tool is not required in our day-to-day business, then what is required? I will talk in my next slide. But this has taken the back seat. The second thing which has not worked is robo advisory. Robo advisory is certainly a flop. Why? Because हम पहले से कहते थे कि emotions
Emotions is the most important thing when you do a financial advisory or financial distribution. So robot cannot bring in emotion. आप में से सबने कोविड में देख लिया कि अगर आपने अपने कस्टमर का हैंड होल्डिंग नहीं किया, if you are not able to connect with him, talk to him, you would have lost the customer. सो कस्टमर्स को रोकने का सही तरीका इमोशनल सपोर्ट ही है, एंड दैट्स द रीजन एमएफडी हैज बाउंस बैक सो स्ट्रांगली, एंड दिस इंडस्ट्री, दिस वर्ल्ड हैज सीन दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोबो एडवाइजरी. People having a robo advisory format found it very very difficult to connect with their customer, convince them at the right time to stay, and those who were not able to maintain their stay in the last 7 months or 6 months have lost everything. First they lost the money, then if they redeemed during April or May by fear, they are nowhere. It will take them another 2 years to make up, or maybe 3 years. So robo advisory has is a clear cut flop from my side. I strongly believe in 2021 emotions chalega दोस्तों. जिसको हम छू सकेंगे, बोल सकेंगे, बात कर सकेंगे, इमोशनली मोटिवेट कर सकेंगे, वही चलेगा. फॉर्मूला नहीं चलेगा. सो दैट इज अगेन माय बिलीफ. सो 2021 के लिए ये बैक सीट है. द थर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग. दिस ऑल्सो टुक अ बैक सीट. फाइनेंशियल प्लानिंग तो बिल्कुल आसान कर दिया सेबी ने. सेबी ने बोला कि रिस्कोमीटर लो और उस रिस्कोमीटर के हिसाब से अपनी कैटेगरीज बना लो, एंड ऑल दीज थिंग्स. आपको ये अच्छा लगता है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर हो. इफ यू कांट अफोर्ड दिस वोलेटिलिटी, आप इस तरह से जाना चाहते हैं, सो आप लो रिस्क कस्टमर है. सो रिस्कोमीटर ने इतना आसान कर दिया पूरे इन्वायरमेंट को कि कस्टमर को अब कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग नहीं चाहिए. सो एमएफडीज को जब मना किया गया कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते, व्हेन दे स्टॉप्ड एमएफडी बाय अ सेबी रेगुलेशंस, they never knew that actually customers do not require it. And that's the feedback which we collected from 1000 different sample sizes, and lot of marketing agencies have come out, they are coming out with reports that actually your customer need your help in terms of regular saving, they need your help in terms of motivation, they want you to push them, उनको धक्का चाहिए to save. They don't want to really look at how much to save for a longer term. Because for example, आपकी तनख्वाह 20,000 है और आप 5,000 बचा सकते हो, तो 5,000 को इन्वेस्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए. आपको अगर मैं मोटिवेट करूं कि आप 10,000 बचा लो, मैं कहां से बचा लूंगा? मेरी तनख्वाह ही 15,000 है या 20,000 है, मैं 5,000 ही मेरे पास स्पेयर है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस. So how can I really make 10,000 of saving? Even your comprehensive financial planning says that. So financial planning only works with people who has got ample money or affluent class. So ये एक रिसर्च निकल के आया कि जो हमारे एवरेज रिटेल कस्टमर है, उन बेचारों को बचत करने की बस धक्का चाहिए रेगुलर, एंड अ मोटा मोटी दे नीड ए एस्टिमेट. सो दैट एस्टिमेट इज वेरी इजीली अवेलेबल विथ ऑल द एमएफडी. हमारे सारे एमएफडी भाई को आज पूछो, बता देंगे कि 5,000 रुपए से कितना बन जाएगा 12% से 10 साल में, 8% से कितना बन जाएगा. तो आपको अपने कस्टमर को सिर्फ यही पिक्चर मोटिवेट करके देना होता है, तो वो बेचारा प्लान कर लेता है. अच्छा ठीक है, बच्चे की पढ़ाई करनी है तो मैं इतना रुपया डाल देता हूँ, अपना रिटायरमेंट को सुखमय बनाना है तो मैं 2,000 थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में डाल देता हूँ, 1,000 रुपए महीने का मैं हाई रिस्क में डाल देता हूँ क्योंकि वेकेशन की करनी है. सो दैट इज व्हाट केम इनटू डिस्कशन. कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड तो गया गया. सो आप लोग के पास डिबेट के लिए 3 लाइन भी बचते हैं, मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ. So these are the 3 things which I personally believe, no offense, I personally believe these 3 things will not work in 2021. These all will work in 2021. Thumbs up. And प्रोडक्ट्स जो बिकेंगे और जो बिक रहे हैं, म्यूचुअल फंड तो है ही हीरो.
और ये हीरो रहेगा। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई ओन गट फीलिंग, म्यूचुअल फंड इज गोइंग टू स्टे हेयर विद अ ह्यूज नंबर। पहले अगर आप 10 लोगों की एसआईपी खोल पाते थे मंथ में, 100 लोग आपको फोन करके बोलेंगे कि प्लीज मेरी एक एसआईपी खोल दो। बट ओनली थिंग, इफ यू वांट टू गार्नर दैट huge inflow which is coming to the mutual fund industry, what you need to do, you need to be very careful. आप एसआईपी खोलते समय आपके पास चॉइस है। आप ये वाली एसआईपी खोल के अपने बिगिनर्स को इन्वॉल्व करके उनका सेंटिमेंट्स खराब करो, या आप उनको ऐसे वाले फंड्स की एसआईपी खुलवा के एक हैप्पी एक्सपीरियंस दो। फॉर एग्जांपल बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, बैलेंस फंड या एसेट एलोकेशन की एसआईपी हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगी, विच आई बिलीव, एंड लॉन्ग टर्म में आपके कस्टमर्स को चिपका के रखेगी। वरना अगर एक बिगिनर को आपने आज एसआईपी ही वोलेटाइल में दे दी, which we generally do as a mistake, हमें लगता है कि he should be very happy, give him SIP in small cap and mid cap. So maybe वो एक साल बहुत खुश हो जाता है अगर उसकी यहाँ पे परचेजेस होती है, यहाँ उसको बहुत मजा आता है। बट जब ये वाला मोमेंट आता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना। वो हमेशा कहेगा मेरी एसआईपी बंद कर दो, मुझे बाहर निकाल दो मेरे। सो व्हाई शुड वी डू दैट? I don't know. Every time when market goes up, my MFD friends start selling SIP in a high and very high risk funds. It is not required, friend. मार्केट में 7% की आरडी चलती है, आपका 12% का अगर उसको CAGR मिल गया, he will be very happy. So why to take unnecessarily risk for him and for your commission also? So what I want to tell here that mutual fund में वही डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा एसेट बना सकेगा या लाइफ टाइम अपने लिए बड़ी पेंशन बना सकेगा, only such distributors who should maintain their emotions and make sure their SIPs opened in the funds should be consistent, should be really steady. अगर वो बहुत हाई वोलेटाइल में एसआईपी खोल रहे हैं तो वो एसआईपी उनको लॉन्ग टर्म रेवेन्यूज देने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत करेगी। खैर, लिस्टेड स्टॉक्स, लिस्टेड स्टॉक का धंधा बहुत बड़ा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ओपन डीमैट, दे गॉट अट्रैक्टेड, दे विल कीप गेटिंग अट्रैक्टेड। सो इफ यू हैव फ्रेंचाइजी और एपी आप कहीं के लिए हो, ऑथोराइज पर्सन हो, तो you must be getting the benefit of such buyers. But I again believe, why will I sell someone a stock which can give almost high risk and the reward equal to what I can get into a diversified equity fund? So ट्रेल भी नहीं मिलना, एक बार की कमीशन और 10 साल तक वो रखता है। सो मेरे लिए तो एमएफ हमेशा प्रेफर्ड है स्टॉक से। But otherwise still, if there are people who are going away from you to Zerodha and others, तो ट्रेडर्स को तो छोड़ दो, लिस्टेड स्टॉक में ट्रेडिंग पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर हमने ट्रेडिंग पे ध्यान दिया तो कस्टमर कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा। सो ये ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग में 90% डेथ है, 10% लाइफ है। सो 90% डेथ यानी कि अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड के प्यारे प्यारे कस्टमर्स को ट्रेडिंग की लत लगा दी, they will all leave you at a point because they will die, their capital will erode, and it's not me only, it's experience. मैं अपने पूरे 25 साल के तजुर्बे से आपको कह रहा हूं, ट्रेडिंग में कस्टमर्स तभी चलते हैं जब बदलते रहते हैं। अगर आपके लिए बेस्ट क्या है ट्रेडिंग के बजाय, गिव देम अ डीमैट बाय और डिलीवरी बाय। सो इफ यू प्रोवाइड अ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, दैट विल ऑलवेज वर्क, दैट विल ऑलवेज वर्क। तो वो आप किसी को स्टॉक खरीदवाना चाहते हैं तो खरीदवाइए। अनलिस्टेड स्टॉक इज गिविंग यू ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, बट बीवेयर, ये बहुत पॉपुलर हो रहा है बिकॉज मार्जिन 10% 15% की भी यहां मिल जाती है। बट द रिस्क इज, अगर एक भी जगह उसका बड़ा पैसा फंस गया तो वो आपका भी लॉस है, क्योंकि आपकी ट्रेल भी मर गई और आप उस पैसे को घुमा नहीं पाएंगे, और उस बेचारे का भी लॉस है क्योंकि उसको पता नहीं कब वो पैसा फ्री होगा। सो आईपीओ जब तक कंफर्म्ड होती है तब तक प्राइस बढ़ जाती है, और आईपीओ के पहले अनलिस्टेड को आप खरीद लेते हो तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। अगर आपको खबर है, अच्छी न्यूज है, केवल नाम पढ़ के मत खरीद लीजिए कि बारबेक्यू का शेयर खरीद लो, रिलायंस रिटेल का खरीद लो। डोंट गो फॉर ब्लाइंड बेट।
So that is my advice. Insurance, people are selling. This is again our star, going to be our star. I strongly believe 2021 is meant for mutual fund and insurance. Insurance will really occupy their space back. People after COVID have understood the name, the meaning of risk. सब लोग रिस्क से अवेयर हो गए हैं, और रिस्क वर्ड जब दुनिया में अच्छे से समझ आने लगता है तो people start accepting those product which covers the risk. So today insurance selling is becoming easy because of human psychology, their fear factor and other things. So health insurance का तो बहुत बड़ा स्कोप है. People cannot deny today कि 5 लाख का इंश्योरेंस कुछ भी नहीं होता. They are now looking for 20 lakhs, 25 lakhs of health insurance. So you should really take such products in the market जहां हाई कवर हो और लो प्रीमियम हो. वो वैसी प्रोडक्ट्स आपको जरूर देनी चाहिए. एनीवे, बॉन्ड्स एंड डेट, ये एक ऐसा एरिया है which I believe again will be the hero for 2021. Gold bonds still will keep coming. Government has done a very nice strategy by bringing in series of sovereign gold bond fund, and you know this is good for our country. When people, अगर मान लो आपको आज वार हो जाता है कहीं पे और हमारी कंट्री के पास खजाने खत्म हो जाते हैं, सो जो लोगों से 2% पे हमने गवर्नमेंट ने लोन उठा रखा है, वो गोल्ड के रूप में उठा रखा है, गोल्ड खरीदा है. सो दैट कंट्री इज वेरी स्टेबल एंड सेफ बिकॉज दैट कॉस्ट अस ओनली 2%. बट एवरी by every issue we are adding that reserves. So गवर्नमेंट ने किया क्या, 2% पे जनता से गोल्ड खरीदवा लिया, जो कि उस अगर वो खुद खरीदती तो उसका खजाना खाली हो जाता. सो कंट्री बहुत स्ट्रांग होती जा रही है. एवरी गोल्ड सीरीज, लोग बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि स्टेबल है. 10 इयर्स में गोल्ड अपने एक एवरेज बैंक रेट को भी छू देता है. सो आप समझ लो इट्स अ सेफ विन विन डील. Debt के भी भारत bond has done miracle. They have performed so well, and just why they perform well, because Bharat bond is safe, it is there on a trading system, plus they are giving a yield which is very very decent and high. So मुझे लगता है कि ये दोनों खूब बिकेंगे अगले साल, लोगों को ये मजा आने वाला है. थर्ड, बॉन्ड्स क्यों अच्छा होने वाला है मुझे शायद आपको बताना ना पड़े, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, व्हेन देयर इज अ लोअर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, सो जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं जैसे टाटा मोटर्स, बीएचईएल या जो भी कोई भी बॉन्ड आएगा, कॉरपोरेट बॉन्ड, प्राइवेट बॉन्ड्स आएंगे, वो बॉन्ड्स का स्प्रेड बढ़ जाता है. मींस जब बैंक से आपको 6 मिल रहा है और टाटा मोटर से 9 मिल रहा होगा, तो यू विल गो फॉर टाटा मोटर. सो प्राइवेट कंपनीज को ऐसे लो इंटरेस्ट सिनारियो में डेट उठाना आसान हो जाता है. एंड विद गवर्नमेंट्स, एनबीएफसी एंड अदर प्रोटेक्शन प्लान्स एंड सिक्योर्ड स्टिमुलस पैकेजेस जो उन्होंने पीछे लॉन्च किए हैं टू प्रोटेक्ट दीज बॉन्ड एंड डिवेंचर इशुअर्स, तो उन सब से मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक बहुत बड़ी रैली आएगी. सो म्यूचुअल फंड का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और नॉर्मल प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये दोनों हमारे 2021 के हीरो होंगे. लोन्स ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी द स्टार. जब इंडिया या कोई भी कंट्री क्राइसिस से गुजरती है, लिक्विडिटी कम होती है, जॉब्स खो चुके होते हैं, तो लोन्स चाहिए होता है. और लोन्स में एग्री लोन तो बहुत तेजी से एक नया सेक्टर बनने वाला है, प्लस स्मार्ट बिजनेस लोन बहुत बनने वाला है. सो मुझे लगता है कि हम लोगों के पास ये फ्रेंचाइजी या ब्रोकरशिप होनी चाहिए लोन्स की. Commodities is going to be the hero. As you know, steel prices are growing, silver is running. तो ये सब कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत तेज होने वाले हैं. So how you take that commodity, I don't know, but commodity is going to be the limelight. Real estate again is going to be the huge space. This is going to be the hero for again 2021. So I believe personally through my own research and systems that real estate is going to, in residential, the residential real estate is going to see a sharp U-turn. So that is going to, PMS I believe will not be a very favorite thing.
बिकॉज लोगों के पास जब सिंगल ऑप्शंस बहुत होते हैं, मनी डायरेक्टली बन रहा होता है और इजीली बन रहा होता है, तो पीएमएस उतना ज्यादा हाईलाइट में नहीं होता। विल तो रहेगा ही। सो जो लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भाई ये देख रहे हैं सेशन, उनके पास इसमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो अपनी फ्लीट कंप्लीट कर लीजिए। आपके वेबसाइट पे, आपके ऑफरिंग्स पे, इन योर मेल्स, एवरीथिंग, यू मस्ट हैव most of these products. So this is going to be the business landscape for distributors in 2021. Now, द न्यूज एमएफ सेल्स मंत्रास, यहां से मेरा सेशन शुरू होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर गिविंग मी द पेशेंस हियरिंग एंड आपके सारे जो सवाल हैं उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस मार्क जो मेरे बना हुआ है उस पर पोस्ट करिएगा, आई विल आंसर इट एट द एंड। सो जस्ट कीप थिंग्स विथ यू। नाउ लेट मी स्टार्ट द न्यू एमएफ सेल्स मंत्र। अपना सबका एक मंत्र होगा जो मुझे लगता है, डोंट सेल एसेट और रिटर्न्स, सेल द रिस्क। सो अभी तक हम लोग क्या बेचते थे? अभी तक हम बेचते हैं डेट, इक्विटी, बैलेंस, हाइब्रिड, लिक्विड। These are the funds, these are the categories, these are the assets which we sell. I believe personally the new sale will be low, high, moderate, moderate risk, moderately high, very high, high and very high। हम लोग ये बेचेंगे अगले साल से और अभी से रादर। सो लोग इसमें कहीं डेट इक्विटी लिख के नहीं आ रहा दोस्तों। सो आपको का कस्टमर आएगा और बोलेगा, आई नीड टू अर्न हाई रिवार्ड विथ हाई रिस्क, माई रिस्क रिवार्ड इज हाई बोथ। सो आप बोलोगे ओके टेक दिस, एंड हाउ विल यू गिव इट? You will just have to filter out all the schemes which are categorized under high risk. तो जो भी यहाँ पे वेरी हाई रिस्क, एक नया ऐड हो गया यहाँ वेरी हाई, ये ओल्ड है, अब पहले यहीं तक था, अब वेरी हाई भी ऐड हो गया। तो जो आपको यहाँ पे कैटेगरी मांगा जाएगा, आप उसको फिल्टर करके उसको शीट दे दोगे। उसके अंदर डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गिल्ट फंड may get categorized under moderate high risk, and some equity fund also get categorized under moderately high risk. तो अभी पहले जैसा नहीं रहा रूल। I think all my friends know this. If you don't know this, read SEBI regulation 5th October 2020, and this is going to be implemented from 1st of January. Every website of mutual fund company, every research company, every MFI website, everywhere you will get this tag with schemes. So today we identify schemes on the basis of liquid, hybrid, debt, low debt, ye debt. But this is going to be the new identification matter. Now, what is this I have written? The low risk product, risk free. RF is risk free return plus 1% can be the selling mantra. Low to moderate, risk free plus 2% can be selling mantra. So anybody who do not have a research backup, who do not do a research on the basis of beta, Sharpe and other ratios, they will also be easily identify and they can sell their customer. So आप लोग पूछोगे कि फिर अगर इतना आसान हो जाता है कस्टमर्स के लिए, तो मेरे पास क्यों आएगा? उसे अपना रिस्क पता होगा और वो उस हिसाब से प्रोडक्ट एमफी में चुनेगा और इन्वेस्ट कर देगा डायरेक्टली। नहीं दोस्तों, यही डिफरेंस होने वाला है। कस्टमर एक्चुअली अपने आप को पहचान नहीं पाएगा वो कहां है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर की सेल्स मंत्र, एंड दैट विल मेक अस, हम सब एमएफडी भाइयों को बहुत ऊंचा ले जाएगी। अगर हमने ये एटीट्यूड में डाल लिया कि हमें कस्टमर को साथ करना क्या है, हमें कस्टमर को रिस्क रिवार्ड का मैच बैठाने में मदद करना है, and there you will be required lot of talking, lot of propositions. हो सकता है वो 10 एसआईपी खोल रहा हो जिसमें से 5 एसआईपी उसके शॉर्ट टर्म नीड के लिए है और 5 एसआईपी लॉन्ग टर्म की नीड की है। तो हमें उसको समझाना पड़ेगा कि तुम्हें जो प्रोडक्ट चुननी है वो इस कैटेगरी में से चुननी है और वो 5 प्रोडक्ट इस कैटेगरी में से चुननी है, एंड दोनों के रिस्क रिवार्ड से उसे अवगत कराना पड़ेगा, तब वो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करेगा।
I hope you got my point, friends. So this is not a easy thing. You cannot just skip it casually. Please remember, this is going to be the key mantra. Sell the risk, don't sell returns. हमें रिस्क बेच देना, रिटर्न तो उसके साथ लगा हुआ है, हर रिस्क के साथ उसका रिवार्ड लगा हुआ है. दिस इज द रिवार्ड, तो ये रिवार्ड तो उसके साथ है. चलो, I hope you got my point, what I wanted to say. If not, again, note it down. I will answer and we will discuss. Now, lesson 1, Way Forward 2021. In this Princess Academy training session, let me put things across. The lesson 1 for Way Forward 2021 is, now you may ask, what is there in Finsis for me? Okay, Finsis is a software. It is giving you a front end and a mobile application. So हम उसमें क्या करने वाले हैं? Obviously हमारे सारे मोबाइल एप्लीकेशन में हमने चेंजेस कर दिए. हमने अपने फंड की कैटेगराइजेशन इसी बेसिस पे कर दी. अपने वेबसाइट्स में भी जो भी हमने कस्टमर्स को वेबसाइट बना के दिए हैं, उन सब में भी हमने कैटेगराइजेशन इसी बेसिस पे कर दिए. सो Finsis is doing all put effort जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो एफर्ट्स हमने कर दिए. हमारी ट्रांजैक्शन करने के मॉडल में भी हमने यही चीजें डाल दी. सो अंडर द सेबी रेगुलेशन एंड बेस्ट कंप्लायंस वी हैव अडॉप्टेड थिंग्स. ओके, चलो. द लेसन 1 फॉर वे फॉरवर्ड 2021. So what you have to do is you have to learn the new art of fund distribution. As I said, रिस्कोमीटर, ये है लेसन 1 का फर्स्ट पार्ट. ये सीख लो दोस्तों. Lesson 2, which I would advise, learn to identify scheme on the basis of size, expense, BTW, best to worst formula. कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने आ जाता है. अगेन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं क्विकली, जरा सा आप देख लें. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फंड चुनना है एंड दैट फंड इज से ICICI डिस्कवरी, और मुझे देखना है कि वेदर आई शुड गिव दिस और समवन. तो वैल्यू रिसर्च के अगर मैं साइट पे जाता हूँ freely, I don't have to pay anything for this, and can just click here and check my regular plan. What am I required to see? This BTW, best to worst. So if you see best to worst, 1 year best is 186% and worst is minus 55. So today, when I am selling a risk to a customer, this is the risk. So where will you put value discovery? I will put it in very high risk. Customer will ask me that what can be my risk. You will tell them कि दोस्तों 55% तो एक बार ये खा चुका है और खा सकता है अभी तक की कैपेबिलिटी से, और नेगेटिव अगर गए तो, और अगर हम पॉजिटिव गए जैसा कि हो रहा है, तो हमें 186 का प्ले मिला है. एक साल में 2 गुना, एक साल में 2 गुना. तो दिस फंड हैज कैपेबिलिटी टू डू दैट. नाउ you may debate on that, you may say no, tell me about, say example, Tata mid cap. So you can see the best and the worst. For example, if you go for Tata mid cap, the only thing you have to see, why I am saying this, because from here onwards for next 5 years, we don't see a major crisis situation. So if we don't see major crisis situation, you have to look at the best which is yet to come. So 131% is the capability to deliver of this fund, double in 1 year, but 62% is what it may take. सो अगर हम सबको यहां से लगता है कि मिड कैप की रैली है और स्मॉल कैप की रैली है, सो व्हाट फंड विल यू चूज? द फंड विच हैज हाईएस्ट कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरी. सो सारे में 100% रिटर्न देने की औकात है. आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हो इजिली कि सर दीज आर द कैटेगरीज वेयर आई वुड लाइक टू टेक यू विथ वेरी हाई रिस्क. दे हैव पोटेंशियल टू गिव 100%. दे हैव प्रूवन इन पास्ट. So these are the few tricks which people are going to use to sell. So lesson is always use BTW formula. That is going to help you. Now the size. Whenever there is a uprise after crisis, please note, whenever there is an uprise after crisis, you must give funds which are large in size or which have regular steady inflow. Why?
अगर आज मार्केट बढ़ रहा है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी इज राइज। आई एम नॉट सेइंग नेम, डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, मैं नेम रिकमेंड के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप लोग को। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी हैज शोन अ गुड राइज। ICICI Value Discovery has shown a good rise. Why? These are the large funds. Being large in nature, redemption उतने नहीं हुए, या हुए भी तो उनका कैश पोर्शन ने उनको बचा दिया। सो दे आर एंड दे वर एबल टू होल्ड द स्टॉक्स। सो आज जो राइज हो रहा है उनको राइज का बेनिफिट मिल रहा है। बट अगर कोई छोटा फंड था तो कोविड में तो आधा वो नष्ट हो गया, हाफ गॉन। आधे सर्किट लग गए, आधे बिक गए। और जब उसको फ्लो भी नहीं आया, अगर उसमें कैश फ्लो भी नहीं आया, तो जब मार्केट बढ़ रही है उसके पास पैसे नहीं है लगाने को। सो इफ यू विल पार्टिसिपेट, दे विल बाय फ्रॉम योर मनी। सो उनके पास पास्ट लीगेसी का फायदा नहीं होगा, होल्डिंग को सस्टेन करने का बेनिफिट नहीं होगा। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट वेन एवर देयर इज अ राइज आफ्टर डाउनफॉल, यहां से जब अपसाइड होता है, सो इस समय लार्जर साइज ऑफ फंड्स काम देगा। तो कमीशन के चक्कर में आप लार्ज फंड छोड़ मत दीजिए, मेरा कहना है उसको भी आइडेंटिफाई करिए। नाउ, learn to communicate on category. This is very safe. Now, according to SEBI restrictions, we are not advisor now. So इतनी बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूं, it is not possible for you to communicate the same advisory to your customer because you are banned, you are barred. So आपको करना allowed नहीं as MFD. So what will you do? How will you make them convince that I will give the best fund and this is the best to do? तो उसके लिए एक रिपोर्ट है which is very important. Go to value research, click on funds. Once you click on funds, come to down, scroll it down and see this fund category returns. This sheet is the best sheet to work. It gives you all the picture and it is safe also under compliance because यहाँ scheme का नाम नहीं है, ये category है. So if you want to communicate to your customers, say example last 1 year, which are the winners? So you can say, sir, pharma sectoral has done very well. 1 year return is 63, but I believe that this is a good return. It requires profit booking, sir, because आपको 3 साल का रिटर्न एक बार आ गया है, 4 साल का रिटर्न एक बार आ गया है, so it is advisable. So कहाँ निकलना है और कहाँ डलना है? So अगर 12% का रिटर्न जहां तक है, ये सारे टॉप परफॉर्मर रहे लास्ट ईयर के। सो देयर आर टू थिंग्स टू टेक केयर। मे भी हो सकता है आप कहो कि जो कोविड को सरवाइव कर गया वो अगले 5 साल का विनर होगा ही होगा। दैट इज वन वे ऑफ टॉकिंग इट। और अनदर इज कि जो कोविड के कारण बढ़ा था, जब कोविड खत्म हो जाएगा तो वो गिर जाएगा, है ना? सो ये दोनों बातें हो सकती है। सो फार्मा एक ऐसा इंडस्ट्री था और सेक्टर था जो कोविड के कारण बढ़ा था। अगर कोविड खत्म हो जाएगा तो फार्मा विल द फर्स्ट वन टू सेटल डाउन। उसी तरह यूएस के डॉलर के बढ़ने से टेक्नोलॉजी में जो राइज आई थी कोविड के दौरान आई थी। अगर कोविड सेटल डाउन हो जाएगा तो इसको भी थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन कौन से लोग कोविड के अपराइज में कमाए हैं, वो आएगा लास्ट 3 मंथ्स के विनर। सो लास्ट 3 मंथ्स का जो विनर होगा वो एक्चुअली अगले 4 साल का बेट है। क्योंकि जो 3 महीने में पोस्ट कोविड यानी कोविड के कम होने पे जो लोग इंप्रूव हो रहे हैं उनको पकड़ो। सो आप देखो लास्ट 3 मंथ्स में फार्मा गया, गायब हो गया। 1 ईयर में फार्मा था, 3 मंथ्स में नहीं है। दैट मीन्स एज एंड व्हेन कोविड क्राइसिस इज इंप्रूविंग, फार्मा एंड बैंकर्स टॉप टेक्नोलॉजीज हट गए। टेक भी नहीं है, बैंकिंग है, एनर्जी है, लार्ज है, वैल्यू है, इंफ्रा आ गया नंबर पे। इंफ्रा भी आ रहा है, अपियर हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप तो अपियर होना शुरू हो ही गए 3 मंथ में, 14% प्लस हो गए। सो टोटल सेंसेक्स मार्च से लेके अभी तक या निफ्टी 12% का एनुअल ग्रोथ दिखा रही है। और आपको अगर कोई भी फंड उस स्पेसिफिक पीरियड में उससे ज्यादा दिखा रहा है तो मेरे ख्याल से इट्स गुड। फार्मा देखिए नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया। इंटरनेशनल फंड्स लोगों ने बहुत बेचा है लेकिन नीचे आ गया क्योंकि डॉलर सेटल हो रहा है। सो ये आपको देखना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। अगेन एज आई एम सेइंग, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू any fixed guideline for this, but I am sharing my thought under Finsis Academy so that you all should make your business robust, ताकतवर और आने वाले दिन का भरपूर फायदा उठा सको। गलतियां मत करना। इस बार खुद अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे तो अगला 5 साल हम सभी को AUM 3 टाइम्स ले जाना बहुत आसान है, बहुत आसान।
We can simply get 3 times AUM from here. And why I'm saying this, 2 times तो मार्केट से मिलने वाला है आपको. तो जो भी आपका यहाँ AUM है वो तो 2 times ऐसे ही होने वाला है अगले 4 साल 5 साल में. सो जो बचता है वो आपके SIP बुक से हो जाना है. तो बेकार में इधर उधर मगजमारी क्यों करनी है? वाई टू गो फॉर लॉन्ग ब्रेथ? जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर डेप्थ एंड यू विल मेक good business stability. So way forward lesson 1, I hope you people understood. Way forward lesson 2, in continuation, I would like to tell you to upgrade in using digital tools. Collaborative models. Collaborative model means कोई एक टूल आपको हेल्प नहीं करने वाला है. यू कैन नॉट जस्ट बाय वन सॉफ्टवेयर एंड थिंक दैट कि मेरा काम हो गया. इन ऑर्डर टू ग्रैब and make your communication, motivation, education, everything possible through digital way, you need to have a collaborative strategy. कहीं से वीडियोस खरीदने पड़ेंगे, कहीं से आपको बहुत अच्छा मेलर्स का टूल खरीदना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप का कोई मॉडल लेना पड़ेगा. यू नीड टू डू, आपको अच्छी डिजाइनिंग टूल्स के लिए कुछ चीज खरीदनी होगी या डिजाइनर खरीदना होगा. सो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी. आपको सब मिला करके आगे बढ़ना पड़ेगा. सो दोस्तों, मेरा सजेशन है लेसन 2, दैट इन 2021 कंसंट्रेट ऑन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर. ट्राई टू इंक्रीज योर डेप्थ, अपनी गहराई बढ़ाओ. मेक बेटर कम्युनिकेशन विद देम. Update them regularly through your newsletter, through your emailers. Motivate them through webinars, through any other things. Give them confidence to remain in the funds. Educate them how to invest in a better format. So that will help you to grow your business. If you will concentrate less on these, it will be good. So I don't suggest anyone to concentrate on breadth. I suggest concentrate on depth. So this is my lesson 2. अगेन, आई एम नॉट सेइंग न्यू क्लाइंट्स मत लाओ. मैं बोल रहा हूं लाओ, वो तो रेफरेंस से ही आपको मिल जाएगा, उतना तो आपके पास खुद ऐड हो जाएगा. बट व्हाट आई एम सेइंग, डोंट स्पेंड मनी इन एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स, डूइंग SEO, ब्रांडिंग, ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन. ये सब में पैसा डालने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है. आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे. इतना धंधा तो आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ही मिलने वाला है और उनके रेफरेंस से कि ये साल 2021, राइट माई वर्ड्स, आपको धंधा संभालना मुश्किल होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज फ्लो ऑफ इनफ्लो. सो जरा सा प्रिपेयर्ड रहिए, अपने एग्जिस्टिंग को दुखी मत करो, कीप देम हैप्पी. यू विल सर्टेनली ग्रो एंड मच बेटर ग्रोथ होगा आपके धंधे में. लेसन नंबर 3, कीप टैक्स सर्विसेज ऑन मेन स्ट्रीम. इस वाले लेसन में मैं एक चीज सबको बोलना चाहता हूं. ये जब तेजी होता है ना, तेजी के फायदे 2 तरह से होते हैं. आपका पोर्टफोलियो अच्छा दिखता है, कस्टमर्स को आपको खुशी मिलती है. बट इसी तेजी में अगर आप हजार रुपए की, इवन इफ 1000 रुपीज SIP यू कैन डिमांड फ्रॉम ऑल योर एग्जिस्टिंग SIPs, तो आपकी SIP डबल हो जाएगी. So if you are running with a 200 SIP, try to target to make it 400 SIP, just by taking one additional SIP from everybody in mid cap or a small cap. You can say कि boss, this 4 years is going to be for the value and mid cap and small cap. Sir, एक SIP तो रिस्क लेना बनता है. Let's buy one. So 1000 जब बोलोगे तो कोई 2 डाल देता है, कोई 1 डाल देता है. बट एग्जिस्टिंग किसी का कितना भी बड़ा SIP चल रहा हो, उससे 1000 और मांग लो, आपका पूरा SIP बेस डबल हो जाता है. So that's what you can use as a leverage. And there, how Fences helps, you need to learn कि बल्क में SIP अगर कैंपेन करनी है, पूरे बल्क में एक साथ सारे कस्टमर को एक लिंक भेजना है, उनको बताना है, तो कैसे वो करेंगे अपने NSE BSE प्लेटफॉर्म से, किस तरह से हम अपने ACH मैंडेट का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट कस्टमर शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट. उनको बस क्लिक करना है और उनका एग्जिस्टिंग मैंडेट उसके SIP को एक्टिवेट कर देगा. ऐसी फीचर्स सीखना होगा, आपको समझना होगा. एंड दैट्स व्हाट Fences is going to help you for that. Lesson 3, keep tax services on mainstream. This is going to be very important, friends. When there is a number of transaction, huge inflow, so लोगों के टैक्स थ्योरीज बदलते हैं. हमारे कंट्री का लास्ट 1 to 2 years में जो चेंजेस आए हैं, ग्रैंडफादरिंग, न्यू टैक्स slabs and everything, indexation, so you have to provide them a proper tax service. Why I am saying this,
बिकॉज ये बहुत खतरनाक है, इट्स वेरी डेंजरस। लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जब जाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको, एंड डोंट माइंड अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे सेशन में है तो प्लीज बुरा ना माने, बट अगर आपका क्लाइंट किसी और चार्टर्ड अकाउंट के पास जाता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको फंड्स के बारे में बताने लगता है कि ये गलत है, अरे कहाँ आप लगा दिए, ये तो लॉस हो रहा है, इट इज नॉट डूइंग वेल। सो जनरली मिसगाइड हो जाता है, कस्टमर मिसगाइड हो जाता है। सो व्हाट आई बिलीव that you should be able to give a ready to upload Excel sheet to your customer, and that's what Finsis has realized. तो मैं 31 दिसंबर के पहले अपने सारे Finsis यूजर को बताना चाहता हूं, मैं रेडीमेड कैपिटल गेन अपलोडर टूल बना रहा हूं फॉर टू फॉर्मेट। नंबर तो तीन चीजें Finsis कर रही है। सबसे पहले आपको दे रही है रेडी टू अपलोड टूल, सीधे वो क्लिक करेगा और अपने इनकम टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म पे एक्सएमएल फाइल चढ़ा देगा। तो हम ऐसा रेडीमेड टूल दे रहे हैं। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनकी जो ये दादागिरी है वो नहीं चलेगी, जिसके चलते हमारे बेचारे एमएफडीज डिस्टर्ब होते हैं, वो क्लाइंट उनका डिस्टर्ब होता है। Third, the second, I am giving a quarterly basis also on a feedback from my good friends. उन्होंने मुझे बोला कि एनुअल तो छोड़ो, आप क्वार्टरली भी ये रिपोर्ट अपलोड करने दे दो, एवरी क्वार्टर। सो जिनको क्वार्टरली चाहिए वो क्वार्टरली डाउनलोड करेगा। थर्ड, आई एम गिविंग अ कैश अपलोड। कैश मीन्स, से एग्जाम्पल, यू हैव अ कस्टमर और आपके पास वो कस्टमर कहीं और से इन्वेस्ट कर रहा था, इनकम टैक्स की हेल्प के लिए आया। सो व्हाट यू शुड डू, आप वो कैश पूरा का पूरा उसका अपलोड कर लो सिस्टम में। वो कैश फाइल आपको दे दे, कॉमन अकाउंट कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट दे दे, जो कैम्स कार्वी से मिलता है। आप उसको अपलोड कर दो, हम उसकी अपलोडर अभी रेडी कर चुके हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ ट्रायल। तो 31 तक आपको ये भी मिल जाएगा। जैसे ही आप उस कैश टूल को अपलोड करोगे, सारा का सारा उसका टैक्स शीट अपडेट हो जाएगा और उसकी वो रेडी टू अपलोड टूल निकाल के अपने आईटीआर में भर देगा। सो आपको एक कस्टमर लॉयल्टी मिल जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये तीनों मेरा वादा है आपको, ये टैक्स रिलेटेड फिंसिस 2021 में आपको ये गिफ्ट देने वाला है। और सोचिए इस गिफ्ट का क्या फायदा है, इस टूल का क्या फायदा है, मैं दिखाता हूँ। सी, लेट मी जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स। ये देखिए, ये जो कंपनी है क्विको, मैं ऐसे, और ये क्लियर टैक्स कितना लेता है आपसे टैक्स फाइलिंग के लिए? अगर सिक्योरिटी ट्रेडर का ये टैक्स फाइलिंग टूल है, सिक्योरिटी ट्रेडर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, दे आर चार्जिंग 3000 समथिंग, 3000 फॉर दिस। एंड ये देखिए क्विको ये कितना चार्ज करता है, ये चार्ज करता है आपसे प्रोडक्ट्स में इनकम टैक्स। लेट्स सी व्हाट ऑल इनकम टैक्स दे आर चार्जिंग। Only for equity, only for mutual fund portfolio, they are charging 399, 2999। सो मैं अगर इनके पूरे सर्विसेज में देखूं, तो लेट मी गो बैक एंड सी, यस दिस इज देयर सर्विसेज। इनकम टैक्स 2699 ओनली आईटीआर फॉर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। और मार्केट में ये बहुत बिक रहा है। सिर्फ क्विको नहीं, क्विको, इवन योर क्लियर टैक्स, दे आर चार्जिंग 3000। ये सब लोग जिस तरह से चार्ज करें, देखिए ट्रेडर इनकम टैक्स 6500, कैपिटल गेन, ओनली कैपिटल गेन कैलकुलेशन दे आर चार्जिंग 1799। और हमारे सिस्टम ये फ्री है, हमारे सिस्टम ये फ्री है दोस्तों। सो व्हाई नॉट दिस 2021, मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टैक्स शीट। आई एम गिविंग यू द पावर, गोइंग टू गिव यू अ नाइस रेडीमेड अपलोडर जो सीधे इनकम टैक्स फाइलिंग में चला जाता है। और आपको जैसा मैंने कहा, मैं कैश अपलोड भी दे रहा हूं। तो इन दोनों को मिला करके एक जबरदस्त टैक्स टूल बन जाएगा, एंड विच यू कैन मेक श्योर दैट इट विल हेल्प। Now, lesson 4, keep insurance service on mainstream. There also, I am coming with a nice tool. As I said, 2021, I am going to gift you both the taxation and the insurance. Under insurance, you should be able to use videos to promote, you should be able to give newsletter to promote, and you should be able to give a nice plan presentation according to the details. So, presentation is something which I am focusing on in terms of insurance tool which we are going to give you in 2021. So
Now, friends, I would like to conclude and get to the end part of my this session so that we can discuss more about it and talk on this. So after these lessons, I would like you to really put your best foot forward. अपना बेहतरीन कदम बढ़ाइए, मजबूत कदम बढ़ाइए। साल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसमें आप अपने आप को अपग्रेड करो अपने स्टाफ को, सो दैट वो डिजिटल वे में इस्तेमाल कर पाएँ, और जो चीज़ आप समझते हो उस पे उनको खुद यूटिलिटी आ जाए। और हायर समवन, इन हाउस में डिजिटल चैंप के नाम से मैं सबको एक एडवाइस दूँगा, अपने यहाँ एक डिजिटल चैंप बनाओ, मे बी फ्रॉम योर एक्जिस्टिंग टीम, और हायर समवन, 12-15 हज़ार जो आपको लगाना है लगाओ, और लेकिन ये अपग्रेड करो अपने आप को। आपका सेम मेंबर्स काम नहीं कर पाएगा, या तो वो अपग्रेड हो या नया आए। सो डिजिटल चैंप इज गोइंग टू बी देयर 2021, आप उसी से हिट करो। लर्न और गेट योर डिजिटल चैंप। सो आइदर उनको सिखाओ और उनको वो करो। शॉर्ट आउटसोर्सिंग, जो फिंसिस ने एक आपको बहुत मदद की है, हम आपको एक छोटा डिजिटल 3 महीने का एक चार्ज करते हैं, उसमें आप अपने टीम को सिखवा दो। जो भी आपका डिजिटल चैंप है उसको हमारे साथ एसोसिएट कर दो, और वो 3 महीने में जब वो चैंपियन बन जाए, तो उसके बाद से आप उसे डायरेक्टली उससे वो सब चीज़ें कराओ जो आप हम पे सपोर्ट लेते हो। So you can create your own in-house digital marketing activity, and friends, believe me, you have to grow like that. अगर आप हमेशा आउटसोर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, आपका ग्रोथ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। सो डिजिटल कैंपेनिंग में खुद को ऊपर लाओ थ्रू योर टीम या योरसेल्फ। हमसे हेल्प ले लो शॉर्ट टर्म के लिए, 2-3 महीने के हमारे प्रोग्राम्स को अटेंड करके, हमारे से वो सर्विसेज लेके वो सीख जाए। गेट इनटू अ डिसिप्लिन, दिस इज द थर्ड थिंग। तो बेस्ट फुट तभी आएगा, आपका डिसिप्लिन हो, आपके यहाँ कैलेंडर छपा हो। देयर शुड बी अ प्री पोस्टेड प्लान फॉर मंडे को ये जाएगा, फ्राइडे को ये जाएगा। थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी में अक्सर आप मिस करोगे। आपको अपना रूटीन बनाना है। उसीलिए मैंने फिर बोलूंगा, डिजिटल चैंप ये कर पाएगा बिकॉज आप बिजी होगे, you may miss it on time. So that digital champ will maintain your discipline of digital post on social media, regular mails, WhatsApp messages, जो कुछ भी करना है अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, बिकॉज हम लोगों ने बात की है अभी अभी कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट को खुश रखना है। 2021 उनको अपने चुंगल में रखना है, उनको बिल्कुल पकड़ के रखना है। तो वो तभी होगा जब कम्युनिकेशन में डिसिप्लिन होगी, उनको हर हफ्ते अपडेट्स मिले, राइट टाइम पे उनको राइट पोस्ट मिले, और उनका मोटिवेशन बरकरार रहे। तो इसीलिए डीसी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। गेट इनटू राइट एटीट्यूड ऑफ सेल्स। जो मैंने सेल्स के लिए आपको सिखाया या एडवाइस करी, अगर आप उस एटीट्यूड को अपनाते हैं, तो लेस एडवाइस, मोर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। एडवाइजरी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें एडवाइजरी से निकाल दिया गया है और हमें एडवाइजरी से रोका भी जा रहा है। सो हम एडवाइस के पीछे अगर पड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हमें इंफॉर्मेशन के पीछे पड़ना होगा, एजुकेशन के पीछे पड़ना पड़ेगा। सो वो सब तभी आएगा जब अपना सेल्स का पूरा तरीका बदलेंगे। डेट इक्विटी बेचने के बजाय लो रिस्क हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क प्रोडक्ट बेचिए। सो जब आप उस पैटर्न पे उतरेंगे, कैटेगरी बेचने लगेंगे बजाय स्कीम के, तो आपका पूरा धंधा फ्लॉरिश करेगा। गेट ऑन सिंगल ईमेल एंड सिंगल फोन, अभी भी समय है। 2021 में कसम खा लो कि एक फोन होगा और एक ईमेल होगा आपकी कंपनी का या आपका। अगर मल्टीपल फोन और ईमेल पे आपका धंधा चल रहा है, तो समझ लो आपको चैलेंज आएगा 2021 में। कौन कहाँ फोन कर रहा है, किस कस्टमर से क्या बात हो रही है, किसकी कहाँ लीड गई है, ये सब संभालना बहुत मुश्किल होगा। सो यू नीड टू हैव आईवीआर सिस्टम। अगर आपका आईवीआर नहीं है, तो ये छोटा सस्ता कोई भी आईवीआर सिस्टम में जरूर इन्वेस्ट करो, ऑन अ चीपर फॉर्मेट ऑल्सो। बट एक आपका फोन सेंट्रल गिरना चाहिए, एक नंबर दुनिया को पता होनी चाहिए। ईमेल भी एक होनी चाहिए, जिस ईमेल पे सब कुछ आता हो और वहां से आपके स्टाफ में बंटता हो। तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी द न्यू थिंग। Create a monthly budget for your digital team plus tools according to your AUM। बजट कर लो, मुझे 15,000 रुपये महीना खर्च करना है, 20,000 करना है, और उस बजट को अपने एयूएम के हिसाब से। ऑब्वियसली आपकी अगर एयूएम अभी छोटी है, तो आपका बजट छोटा रखना होगा, और एयूएम अगर बड़ी है तो उसका एक अच्छा परसेंटेज अपने उसको दो, ताकि आप उसका डेप्थ और बढ़ा पाओ। सो ये परसेंटेज में कोताही ना बरते। आप अपने सालाना एनुअल आने वाले इनकम का एक
5% 4% का हिस्सा मोटा मोटी जरूर डिजिटल टीम को देना चाहिए। नाउ एज ए हेल्प फिंसिस हैज डन टू थिंग्स, एक तो हम आउटसोर्स करते हैं प्लस हम लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं। सो व्हाट फिंसिस इज डूइंग, हम एमबीए बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं या जो फोर्थ कमिंग आने वाले हैं। हम लोग कुछ इंस्टीट्यूट से टाइप करके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं फॉर डिजिटल अपग्रेडेशन। सो वंस दे गेट ट्रेन्ड, वी आर गोइंग टू प्लेस देम फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर्मेट, केपीआई बेस्ड एक्टिविटीज, मल्टी प्रोडक्ट नॉलेज और फुल टाइम एंड पार्ट टाइम ऑप्शन में खुला रहेगा। तो आप लोगों को क्या फायदा हो जाएगा कि जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ से ले चुका है और वो सारे टूल्स, कैनवा, मेलचिम, व्हाट्सएप, फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग, सब वो हमारी ट्रेनिंग सीख सीख चुका है। तो आप वैसे ट्रेंड लोगों को जब हायर करोगे, सो स्ट्रेट अवे आपको एक रिसोर्स मिल गया जिसे आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। So that is what we are going to do in 2021. We are going to create at least 200 to 300 such management graduates जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करे हुए हैं, उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सो वी विल गिव देम दैट डायरेक्शन। दे विल बी डूइंग पार्ट टाइम और फुल टाइम मीन्स मे बी आपको सिर्फ सैटरडे संडे जरूरत है। यू डोंट वांट टू पे 25,000, you may pay them 10,000, so they will take 4 such jobs and justify their cost। ये भी हो सकता है। सो चीपर और अफोर्डेबल रेट कैसे बननी है, दैट वी आर वर्किंग, बट वी आर गोइंग टू गिव यू। सो इफ यू नीड टू हायर, just write at admin, we will connect you with such team and executives who will work hard for you and make changes. That what we call digital champ. Our frontline managers, Ginu James and Hardeep, both are available on extension 16 and 17 from 10:30 to 6:30. In between, there is lunch and training time, so you can use them. बल्कि उन्होंने अपने नंबर्स भी आपके ग्रुप पे डाल दिए हैं सो दैट यू कैन आंसर देम और टॉक टू देम। सो जीनू जेम्स और हरदीप ये आपके सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम मेरे तक ला सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दे कैन जस्ट क्लियर इट आउट, मे बी दे कैन लिसन टू यू एंड कोऑर्डिनेट विथ मी दैट व्हाट इज द बेस्ट जो आपको 2021 में अपने आप को स्टेबल करने के लिए चाहिए। these 2 persons, आपका जो रेस्पेक्टिव आरएम है यानी जो एग्जिस्टिंग फिंसिस यूजर है वो अपने रेस्पेक्टिव आरएम से भी बात कर सकता है और हमारे को डायरेक्टली जीनू जेम्स और हरदीप से भी बात कर सकता है। आवर पेजेस एज यू नो, फेसबुक पे फिंसिस के नाम से हमारा पेज है। इस पे बस फेसबुक जाइए और फिंसिस टाइप करिए, उस पे जरूर हमें फॉलो करिए। वी कीप पोस्टिंग थिंग्स देयर। यूट्यूब पे हमारे सारे वीडियोस होते हैं और पूरी ट्रेनिंग किट है। वहाँ आर्म फिनटेक लिखना होता है, यू जस्ट राइट आर्म फिनटेक एंड यूट्यूब सर्च में यू विल गेट देयर। वी हैव एफएक्यू, नॉलेज बेस सेंटर, help.armfintech.com, आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ में मेरा ब्लॉग है और बहुत सारे लोग मेरा ब्लॉग पढ़ते हैं और उस कनेक्टेड हैं। बट अगर बाई चांस आपने वो ब्लॉग अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिन FINN CA CA फिनका डेमी, तो फिनकैडमी। सो दिस इज माय fincademy.com, दिस इज माय पर्सनल ब्लॉग। किसी को अगर उस ब्लॉग का इंटरेस्ट हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इट्स फिनकैडमी, नॉट अकेडमी, इट्स नॉट अकेडमी, इट्स फिनकैडमी। ओके, चलिए। तो अब मैं सेशन को यहाँ रखता हूँ और आपके क्वेश्चंस के लिए खुलता हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन बॉक्स में डालिएगा। और थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग टू ऑल दीज। I will share the video with everybody so that they can uh, again finally re-listen to it और जो भी आपके queries हो उससे solve हो सके। So let me just put a pause to the recording. I am back.